Hello everybody. So today, as you can see, I have written circulatory system. So we are dealing with the circulatory system today, but before that we should understand what you mean by the circulatory system and what it does, right? So I have drawn two pictures here. One is simply the four-chambered heart, another is the cross section of the heart, right? Now first we will discuss the proper movement of the blood and why the blood moves here. So that is very important to know why blood will move. Okay. Now as you know that all our body systems like the circulatory, respiratory, digestive system, all systems are interrelated. One is dependent on the other, right? Like in digestion, what is done? In digestion, food is broken down into the simpler form and it goes to each and every cell. Why it goes to the cell? Why the food goes to the cell? As food when goes to cell, it will release energy. But food alone cannot give the energy. It needs to be oxidized, means it has to be combined with oxygen. So when it will combine with the oxygen, when someone will bring the oxygen to it, so who is responsible to bring the oxygen? That is the blood, right? Now again the question came, blood, then from which system blood will come to us and blood will carry the oxygen? So blood main function is the transportatory, means it transport the things from the cells and it also collects the waste from the cells, okay, to its organ where it can be disposed of. So now blood movement will be regulated by the heart, okay. Now अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रहा है, ब्लड तो हम ऐसे नहीं डाल देंगे. अगर हमने ऐसे डाल दिया तो व्हाट विल हैपन? द फ्लो विल बी स्लोअर. जस्ट इमेजिन, मैंने ज़मीन में एक ग्लास पानी ऐसे वेरी स्लोली उसको डाल दिया. सो वो कितना दूर तक जाएगा? व्हेन देयर इज़ नो प्रेशर वो भी कम दूर ही जाएगा. बट सपोज आई एम टेकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर एंड जस्ट स्प्लैशिंग द वाटर विथ द हाई फोर्स. So the water will also go to that much distance. Okay, so that means what word I am using? Pressure, right? So the pressure we apply, it will go that much long, उतना दूर जाएगा. ठीक है, बस वही चीज़ है. तो ब्लड को इतने दूर तक बॉडी के हेड से लेके ब्रेन से लेके टो टिप तक, वहाँ तक कैसे पहुँचेगा? बिकॉज वी हैव द ब्लड वेसल्स not so wide and not so pressurized. So that part has to be done by the heart. So अब हमारा बेसिक चीज़ आ जाता है कि हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन. वो पंप करता है विथ प्रेशर, एंड जब वो प्रेशर से पंप करता है तो ब्लड ईच एंड एवरी बॉडी सेल्स को या बॉडी पार्ट्स को मिलता है. ओके, चलो अब हम आते हैं अपने कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड. ब्लड कैसे जाता है? ऑक्सीजन सप्लाई करता है, वो डीऑक्सीनेट होता है और कैसे फिर रिटर्न होके जहाँ पे देना होता है दे. सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम दी हार्ट. दिस इज द फोर चैम्बर्ड हार्ट. यूजुअली हार्ट को हम कोन या ट्विस्टेड कोन के शेप में बोल सकते हैं. व्हाट इज द साइज? इट्स साइज इज जस्ट एज योर फिस्ट. आपका फीस्ट जितने साइज का होगा आपका हार्ट विल बी ऑफ द सेम साइज. ठीक है, तो हमारा हार्ट हमारे फीस्ट जितना बड़ा होता है, थोड़ा सा ट्विस्टेड होता है कोन के शेप में, लेकिन ट्विस्टेड होता है. एंड लोकेशन वाइज वो हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द, मोर टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड. इट इज़ नॉट एग्जैक्टली इन द लेफ्ट साइड, इट इज़ मोर टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, लंग्स कैविटी के अंदर या फिर हम बोल सकते हैं रिब केज के अंदर present रहता है. Now let me start with the heart. Here you can see four chambers. So our heart is four chamber. उसमें चार खाने होते हैं, चार रूम्स होते हैं, और चारों रूम्स में सिर्फ एक ही दरवाज़ा, एक दरवाज़ा होता है आने के लिए, जाने के लिए. एक जिस दरवाजे आप आओगे उस दरवाजे, सेम दरवाजे आप जा नहीं सकते हो. आने का दरवाज़ा अलग, जाने का दरवाज़ा अलग.
So यहाँ पर these gates you can see these are the valves, and these valves allow the entry of the blood in the unidirectional way, means only in one direction it will move. ठीक है. So you can see this is the blue part, this is the red part. What does that mean? यहाँ पे हमारा deoxygenated blood है, यहाँ हमारा oxygenated, मतलब ये ऑक्सीजन से भरा हुआ है ब्लड, यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, ऐसा नहीं कि एब्सेंट है, कम है. तो ज़्यादा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, राइट. चैम्बर्स बता दूँ आपको, दीज आर द 2 ऑरिकल्स. ऊपर में 2 ऑरिकल्स होता है, नीचे में 2 वेंट्रिकल्स होता है. ठीक है. 2 ऊपर के ऑरिकल्स, राइट लेफ्ट. सो लेट मी say you, this is the left side of the heart and this is the right side of the heart. Okay, here you can see this is the middle wall जो कि दोनों ब्लड को मिक्सअप होने से बचाता है. ठीक है. सो ये हमारा हार्ट का बीच वाला वॉल है, एंड दिस वॉल you can see here in the diagram, it is the septum, it is the interventricular septum. ये ventricular septum है, ऊपर में auricular septum होता है. चलो, now we will start the circulation. अब ये जो arrows हैं, it is for the blood movement. Here the blood comes to the right auricle. Right auricle fill हो गया. यहाँ पे walls हैं. These walls again single direction. blood को move कराएंगे in the right auricle. When the right auricle is filled up, पूरा fill हो गया, then it will allow the lower part to open. This is the wall. So this wall, what happens? It opens up. By the pressure, it opens. When it opens, the blood gets inside to the right ventricle. And ये fill होने से ये वाला close हो जाता है. Again close. Now this is a valve. What valve it is called? It is called the tricuspid valve. आपको याद रखना है इसका नेम, जो कि राइट साइड में है, दोनों ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, दैट इज द ट्राइकस्पिड वॉल्व. नाउ व्हाट हैपेंस? ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, दिस इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ फिल हो गया. जब वो पूरी तरह से फिल हो जाएगा, इट विल अलाउ, दिस इज द बंद, दिस इज क्लोज्ड. यहाँ फिल होने के बाद अगेन वो प्रेशर करेगा नीचे वाले वाल्व्स को ओपन करने के लिए. These walls are called as the semilunar walls. Here you can see semilunar. Semi means आधा, lunar means moon. तो आधा moon, just like a half moon. So there are 3 valves here in the form of semilunar wall, and then the blood will go to the pulmonary artery, and it will take it to the lungs for its purification or for the oxygenation. ठीक है. पल्मोनरी आर्टरी नेम के अगेंस्ट है. यूजुअली आर्टरी आपको बता दूं, आर्टरी ऑलवेज कैरीज दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट ये पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है, लंग्स में लेके जाता है, लंग्स में प्यूरिफाई करता है, एंड देन अगेन वो लेफ्ट ऑरिकल में लेके आएगा. इसीलिए इसका नाम है आर्टरी, बट पल्मोनरी आर्टरी. सो इट टेक्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. Okay, blood moves to the lungs. Lungs में more oxygen it receives. It become now it is red. यहाँ पे वो पर्पल कलर का होता है, तो रेडिश पर्पल. ऑक्सीजन मिल गया, it became oxygenated blood. Now it enters to the next chamber of the heart, that is the left auricle. So remember, left auricle or left side of heart always carries the oxygenated blood. Okay, same, the valves are here. Valves open up, auricle part fills. Once it is filled up, this closes itself. Then once it is closed, this valves open. This is the bicuspid valve. Okay, or we say mitral valve. Valve means again it is a gate in this direction. So when the blood pushes it, it opens. And when the blood will move, it will close like this, right? So it is only one directional. So once it is filled up, it will push it to the left ventricle. ये fill हो गया, तो ये फिर बंद. Then the blood
oxygenated blood will move to the aorta. Aorta is the largest artery of our body. ये artery है and इसका नाम है aorta. So this aorta will take the oxygenated blood to all the body parts. I have written here, so body parts. So it will take the oxygenated blood to the body parts. From the body, processing takes place. Oxygen दिया जाता है, ब्लड ऑक्सीजन सब सेल्स को दे दिया, जहाँ पे उसको ज़रूरत है उसने उसको दिया, एंड देन जितना वेस्ट एंड द अनयूज्ड और द वेस्ट गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, मॉइस्चर, वेस्ट, वो सब फिर ब्लड कैरी करके लेके जाएगा, बिकॉज इट इज़ अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम. सो द ऑक्सीजन विल नाउ, the blood will take the or we say deoxygenated blood. इसमें ऑक्सीजन का लेवल कम है और ये अब बॉडी से प्रोसेसिंग होने के बाद फिर कहाँ जाएगा? अगेन इट विल गो टू दी थ्रू द ऑरिकल, इट विल गो टू दी लंग्स. ओके, सो आया यहाँ से बॉडी में आने के बाद वो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड हो गया. ये कैपिलरीज है. आई हैव मेड दिस पार्ट, एक्चुअली दीज आर द कैपिलरीज, सिंगल लेयर सेल जहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस ऑक्सीजन एंड ब्लड का इजी हो जाता है. सो वहाँ पे ईच एंड एवरी बॉडी सेल्स को दे दिया उसने, यूज्ड अप हो गया, वेस्ट को कैरी किया, कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी किया और लेके चला गया फिर से हार्ट के अंदर थ्रू वेना कावा. दीज ब्लड वेसल, इसको बोलते हैं वेना कावा, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेके आता है. सो दो तरह के वेना कावा हैं, वन इज सुपीरियर वेना कावा, वन इज इंफीरियर. सुपीरियर वेना कावा जो बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा. इंफीरियर वेना कावा वो होता है जो बॉडी के नीचे वाले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगा. ठीक है, सो ये है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम. एंड ये कॉन्ट्रैक्शन जो भर जाने के बाद जो पुश करेगा टू गो टू द नेक्स्ट चैम्बर, वो कौन हेल्प करता है? पेस मेकर होता है आउटसाइड द हार्ट. इट इज़ एन इम्पल्स मसल्स, इनवॉलेंटरी मसल्स को कंट्रोल करता है. दैट पेस मेकर इज आउटसाइड द हार्ट, राइट? सो दैट कंट्रोल्स द मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, राइट? सो वेना कावा, just remember 3 types of veins are there, that is superior, inferior and coronary sinus. वो होता है हार्ट के बाहर में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे भी लेके आके फिर से हार्ट के लेफ्ट राइट चैम्बर में डाला जाता है. ओके, नेक्स्ट पार्ट वी विल कंटिन्यू दी हार्ट. ओके चिल्ड्रन.